Good morning, students. Today we will study about the structure of mitochondria, which is an important part as cell organelle of a plant and animal cell. They are principally concerned with the generation of energy to support the various biological activities carried out by the cell, and they are known as powerhouse of the cell. In 1880, for the first time, Rudolf Kolliker was the first to report mitochondria in striated muscles of insect. Later on, Altman discussed mitochondria in 1890, and the term mitochondria was coined by Bende in 1897. They are rod-shaped, spherical or filamentous organelles found in cytoplasm of eukaryotic cells. They are about the size of bacteria, that is about 1 micrometer in length. They are smaller than plastids. Mitochondrion is covered by two-unit membrane. The outer membrane is smooth and the inner membrane is infolded inside to form finger-like processes known as microvilli inside the mitochondrial matrix, and these finger-like processes are known as cristae. Penny tennis racket-like small particles are situated on the wall of cristae. Each particle is divided into 3 parts: base, stem and head. These particles are called F1 particles or elementary particles or inner membrane subunits. Some scientists given the name as oxysomes also. All enzymes of electron transport system and oxidative phosphorylation are present on these particles, and mitochondrial matrix has all enzymes of Krebs cycle and DNA, which is circular in shape, ribosomes and RNA. Mitochondria are not found in bacteria and blue-green algae. They are also absent in mature red blood cells. Mitochondria have the 65 to 70% protein as chemical composition, 25 to 35% phospholipids, 0.50% RNA and DNA present in traces. Mitochondria are semi-autonomous, self-replicating, and they divide to increase in number. They have a circular chromosome resembling the chromosome of prokaryotes but much smaller in size. They contain their own genetic system, which is separate and distinct from the nuclear genome of the cell. The functions of mitochondria is giving the power or energy to all the biological activities of eukaryotic cells. Therefore, they are known as powerhouse of the cells because enzymes located on the cristae carry out the energy yielding steps of aerobic metabolism. Major part of aerobic respiration takes place in mitochondria, where carbohydrates, fats and amino acids are oxidized to CO2 and H2O, that is carbon dioxide and water. In this process of oxidation, a high energy compound ATP is synthesized from ADP through oxidative phosphorylation using electron transport system. The ATP means adenosine triphosphate, the most important energy transfer molecule of all cells. It is also known as biological energy currency of the cell. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में पढ़ेंगे, जिसे सबसे पहले कैलिकर नाम के वैज्ञानिकों ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। इसके पश्चात सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने इसे 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। पौधों में
1904 में सबसे पहले ये निम्फिया या एक जलीय पौधे में रिपोर्ट किया गया। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जीवद्रव्य में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। अगर इनके आकार के विषय में समझा जाए तो यह छड़नुमा या दीर्घ वृत्ताकार, गोलाकार, अंडाकार आदि आकृति में पाए जाते हैं और इनकी संख्या सामान्यतः एक कोशिका में 40 से 50 तक होती है। यकृत कोशिकाओं में इनकी संख्या 1500 तक हो सकती है, जबकि कुछ शैवाल कोशिकाओं में यह केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया रिपोर्ट किया गया है। इनका जनरल आकार 1.5 माइक्रोमीटर से 7 माइक्रोमीटर तक होता है और संरचना के आधार पर यह 2 झिल्लियों से या कलाओं से घिरी संरचना होती है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, जबकि अंदर की झिल्ली जीवद्रव्य के में अंदर की ओर उंगलियों के समान उभार या प्रवर्ध बनाती है, जिन्हें शिखर या क्रिस्टी कहा जाता है। दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्थान या आउटर चैम्बर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर चैम्बर में एक होमोजीनस प्रोटीन युक्त समांग पदार्थ भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। मैट्रिक्स में लवण, डीएनए अणु, 70S राइबोसोम्स तथा श्वसन संबंधित क्रेब चक्र में पाए जाने वाले एंजाइम्स भरे होते हैं। हरित लवक की भांति माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वशासित या सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग होता है। क्रिस्टी की सतह पर अनेक सूक्ष्म कण एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम के अंतराल पर पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल या F1 कण कहा जाता है। प्रत्येक कण के 3 भाग होते हैं, पहला आधार या बेस, दूसरा वृंत या स्टॉक तथा तीसरा शीर्ष या हेड। इनमें एटीपी सिंथेसिस एंजाइम पाया जाता है। F1 कण ऑक्सीकरणीय फॉस्फोराइलेशन की क्रिया में भाग लेते हैं तथा एटीपी के रूप में कोशिका में ऊर्जा को संचित करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला तथा क्रिस्टी में श्वसन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला पाई जाती है और जिस समय कोशिका विभाजन होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी समान रूप से विभाजित होकर डॉटर सेल्स या पुत्री कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर इनमें लगभग 65% प्रोटीन पाया जाता है और इसके साथ साथ इसमें विटामिन ई, आरएनए और डीएनए भी होता है। साथ ही श्वसन श्रृंखला के सभी वर्णक जैसे साइटोक्रोम बी, A2, A3, क्विनोन, यूबिक्विनोन, FMN, NAD, FAD इत्यादि भी पाए जाते हैं। यदि कार्य के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया को समझा जाए तो इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में या एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल से संबंधित विकर या एंजाइम पाए जाते हैं। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन विभिन्न बाह्य अणुओं के द्वारा होता है। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे एटीपी के रूप में स्टोर या संरक्षित कर लिया जाता है।